Welcome students, welcome to our channel Infinity Scholars Hub. In today's lecture, we will be discussing a topic of non-verbal reasoning, and the topic is mirror images. So, the topic non-verbal reasoning is a part of your NTSC exam and various other Olympiads. So, we need to understand this topic. It's an easy topic and we will solve few questions today which will help you out in solving these questions. Okay, so let's start. Okay, now see, after this slide we will be solving questions. So first let us understand what kind of question will come. Okay, so majorly there are two types of questions. Okay, first question is what? You will have a combination of alphabet and numbers, or simply you will have only alphabets, or you will have only numbers. Okay, and the second type is an image will be given to you. Okay, say a figure X, and you have to find out the correct mirror image of that particular given image. Okay, so let's read out the question. So first is what? In some of the following questions you are given a combination of alphabets and or numbers followed by 4 alternatives. Choose the alternative which closely resembles to the mirror image of the given combination. Okay, and in some questions, so what is given, and in some of the following questions, choose the correct mirror images of the given image of the figure X from amongst the 4 alternatives 1, 2, 3, 4 given along with it. Okay, so let's go on to the questions then. Okay, so see, the question on mirror images are very easy. Mirror images and water images, these two topics are considered under a single topic. Okay, so let's see. Now see, whenever I say mirror image, that means you have to make that image laterally inverted. Okay, you have to invert it laterally. Laterally means say the mirror is over here and the image will form over here. On the other hand, when we say water image, in water image your image is flipped, or you can say inverted vertically. So if you are told to find out the water image, that means this is water and your image will form below it. Okay, so this is the major difference between mirror image and water image. So you should know, when a question on mirror image is there, you have to invert that figure laterally. Okay, so that means if I place the mirror, see, this too will be reflected like this. Okay, so in which of the figures? This one. If you see all the other options, they are wrong. Why they are wrong? Because the last thing over here will be the first thing in the mirror image. Okay, so you should know this. And the first is A over here, which is absolutely wrong. This is S over here, which is absolutely wrong. There is 1 over here, this is also absolutely wrong. So by this you can directly make out that option number 2 is correct. So you do not need to reflect all the alphabets and numbers given in the images also. Okay, just have keep checking like which option is coming closely to your answer, and by this method you will be easily able to get the answer. ठीक है, so option number B आपका सही आंसर है इसमें. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं. नाउ यहाँ पे एक इमेज दी है, अब इस इमेज का मिरर इमेज ढूंढना है. ठीक है, सो मिरर इज लाइक दिस ओवर हियर. अब देखो ये जो ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लाइन है दैट विल बी एज इट इज. ठीक है, अब दिस विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस. ओके, तो यानी ये छोटा पार्ट है, ये छोटा पार्ट यहाँ आएगा, यहाँ पे लंबा पार्ट आएगा. राइट, सो देखो, अगर आप ये इमेज देखो तो इसमें तो लंबा पार्ट दिया हुआ है, दिस कैन नॉट बी द आंसर. अब यहाँ पे छोटा पार्ट है और यहाँ पे बड़ा पार्ट है, येस दिस कैन बी माई आंसर. अब यहाँ पे भी देख लो, बड़ा पार्ट दिया है और छोटा पार्ट दिया है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा. ठीक है, सो इट कैन बी आइदर दिस वन या तो फिर ये वाला होगा. ओके, अब देखो ये जो शार्प एज बन रही है, ओके, दैट इज नियर टू द मिरर, तो यहाँ पे भी शार्प एज बनेगी बॉटम में. ठीक है, सो यानी आपका फिगर कुछ ऐसा रहेगा. ओके, एंड ये ऐसा. सो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर. अब देखो आप यहाँ पे देखो, ये तो पतला जो पोर्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, विच इज रॉन्ग, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका. दिस विल बी दी करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा. मिरर इमेज में जनरली आप क्या कर रहे हो
कि ये आपकी इमेज है, ठीक है, इसको फ्लिप करके आपने यहाँ रख दी, बस दैट्स इट, यू आर डूइंग ओनली दैट मच। ओके, सो ये बात का आपका ध्यान रखना है, इसको ऐसे उठा के यहाँ पे रख देना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है 1965 INDOPAK, ठीक है। तो मिरर इमेज तो के ऐसा बनेगा यहाँ पे, सबसे पहले तो देख लो सब में के है, देखो यहाँ पे के नहीं है, यहाँ पे पी है, तो ये गलत हो गया, पहले ही उसको हटा दो, डोंट सी दैट। ए है, ए तो मिरर में ऐसा का ऐसा रिफ्लेक्ट होता है। अब यस, उसके बाद है पी, पी कैसा बन जाएगा, पी ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो देखते रहो आप साथ ही में, के ए पी सही है, यहाँ पे भी के ए पी, यहाँ भी सही है, के ए पी यहाँ भी सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखो ओ, तो ओ तो रिफ्लेक्ट होके वैसे का वैसा ही दिखेगा। डी जो है वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ओ और डी, अब देखो ओके, ओ है, डी हमारे से सिमिलर आ रहा है, डी भी सिमिलर आ रहा है। नेक्स्ट इज एन, एन जो है वो रिफ्लेक्ट होके कैसा दिखेगा, लाइक दिस, करेक्ट, ये ऐसा दिखेगा एन। तो अब यहाँ पे एन कहाँ पे गलत, सब जगह सही बनाया है एन भी। आई कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, राइट। फाइव कैसी हो जाएगा आपका, 5 विल लुक ओके लाइक दिस, 5 आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो 5 कहीं पे गलत दिया हुआ है, नहीं सब जगह सही दिया हुआ है, राइट। आपका जो 6 है दैट विल लुक लाइक दिस, 6 भी आई गेस सब जगह ओके। 6 देखो यहाँ पे 6 जो है वो गलत दिया हुआ है, और यहाँ पे भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली 6 हमारा कैसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 6 को आप, राइट, हमारे से मैच करता आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है, एज सुन एज आपको पता चल गया कि बाकी के 3 ऑप्शन गलत है, दैट मीन्स डेफिनेटली जो बचा हुआ ऑप्शन है दैट इज व्हाट, दैट इज करेक्ट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज इज गिवन। अब इमेज का आपको मिरर इमेज निकालना है, राइट। तो यानी आपने मिरर को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे ये लाइन ऐसी है, तो मिरर में ये लाइन ऐसी हो जाएगी। अब वैसी लाइन कहाँ पे, इन 3 फिगरों में, ये नहीं है, एलिमिनेट दिस, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला सेमी सर्कल था, ये एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, और ये क्या फ्लिप हो जाएगा, सो इट विल लुक लाइक दिस, ये ऐसी फिगर बननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे ये देखो ये गलत हो गया, ट्राइंगल आएगा ही नहीं, रहेगा तो यही का यही। ओके, अब ये जो ट्राइंगल है वो ऊपर है, तो वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, राइट। ये फ्लिप करके ऐसा आ गया, तो ये ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो एज है दैट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दी, समझ लीजिए डायमीटर है सर्कल का, दैट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दी सर्कल। बट अगर आप जो इमेज दी है उसमें देखो, कोई भी वर्टेक्स है वो डायमीटर को फेस करके नहीं है, बट ये वाले फिगर में जो वर्टेक्स है ट्राइंगल का वो डायमीटर को फेस कर रहा है, दैट मीन्स दिस ऑल्सो विल नॉट बी द आंसर। तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्यू है, मिरर इमेज ढूंढनी है, यानी मिरर हमेशा यहाँ होता है। अब इसका रिफ्लेक्शन जो रहेगा दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो कहाँ पे एच दिया हुआ है, पहले तो देखो इसका आंसर हमें तुरंत ही मिल गया, राइट। फर्स्ट एच आना चाहिए, ये फर्स्ट एच नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एच है, बट आप देखो एच को रिफ्लेक्ट नहीं किया है, एच जैसा था वैसे का वैसा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब ये देख लो, पहले डी लिख दिया है, पहले तो होना चाहिए एच, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। बचा हुआ ऑप्शन नंबर 4, एच रिफ्लेक्ट किया है, तो डेफिनेटली दिस विल बी आवर आंसर। तो किसी किसी चीज़ का आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। तो आप हमेशा ये अप्रोच रखिए कि जो आप चेंज कर रहे हो, चेंज करके तुरंत देखो ऑप्शंस में कि कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है और कौन से में नहीं हो रहा है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि इवन एक स्टेप करने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट देन। ओके, अब देखो ये इमेज है या वापस यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा मिरर रहेगा, ठीक है। तो ये लाइन ऐसी आएगी, ये जो ऐसा बन रहा है दैट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। ये जो ऊपर भी ऐसा है दैट विल लुक लाइक दिस। अब ये ऐसी लाइन आ गई, ओके। ये जो ओके फाइन, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, राइट, रिफ्लेक्शन में। अब देखो ऐसा फेस दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों तो हट गए, क्योंकि ऐसा तो बनने ही नहीं वाला है हमारा डाइस। हमारा डाइस बना है कैसा, हमारा डाइस बना है ऐसा, राइट। ओके, अब टॉप में 1 था तो 1 तो आएगा ही, यहाँ पे ट्राइंगल था तो ट्राइंगल तो वैसे का वैसा ही रहेगा, राइट। सो ट्राइंगल वैसे का वैसा है, यहाँ पे तो ट्राइंगल को इन्वर्ट कर दिया, तो ट्राइंगल इन्वर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि हम
हमें क्या करना है, फ्लिप करना है, तो हम ये ट्राइंगल को फ्लिप करेंगे तो ये ट्राइंगल का शेप तो वैसा का वैसा रहेगा, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, तो दिस सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन देन। ओके, अब ये क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन दिया है नंबर्स का और अल्फ़ाबेट्स का, ठीक है, तो मिरर हमारा रहेगा यहाँ पे, राइट। सो आर का रिफ्लेक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है। अब देख लो, पहला आपका अल्फ़ाबेट आर होना चाहिए, यहाँ पे तो एन दे दिया, सो दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग। बाकी तीनों में आर दिया है और रिफ्लेक्शन भी सही किया है, राइट। अब देखो एन का रिफ्लेक्शन भी सही है तो एन नहीं देखते, या तो गो सीक्वेंस वाइज, यू है, ठीक है। अब देखो ये दो यू सेम दिख रहे हैं बट ये डिफरेंट दिख रहे हैं, तो हम यू का रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, तो डेट विल बी ईजी फॉर अस। देखो ये ऐसा है और ऐसा है, तो यू हमारा ऐसा दिखना चाहिए, तो यू येस करेक्ट, यहाँ पे भी वैसा ही दिख रहा है, ये तो एन बना दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, छोड़ दो। उसके बाद बचा क्या, अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन को देखो, देखो 7 दोनों में सही है, ठीक है, तो 7 को देखने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। देखो अब नेक्स्ट इज व्हाट, पी, आपका पी का रिफ्लेक्शन क्यू जैसा है, देखो यहाँ पे गलत हो गया, पी का जो रिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी क्यू लाइक दिस, और यहाँ पे है क्यू बना हुआ है, यहाँ पे तो पी का रिफ्लेक्शन तो डी बन गया, पी का रिफ्लेक्शन हमेशा क्यू बनेगा, पी का रिफ्लेक्शन डी नहीं बनता है, ठीक है, मिरर इमेज आई मीन, ठीक है। और यस, तो पी का मिरर इमेज क्यू बनता है, कभी भी डी नहीं बनता है, सो दैट मीन्स दिस ऑप्शन नंबर 3 इज आर करेक्ट आंसर, तो ये 3 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो हर एक का रिफ्लेक्शन भी मत करते रहो, बचे हुए ऑप्शन है उसमें देखो, मैंने देखा कि 7 और 7 दोनों में सेम है, यानी डेफिनेटली वो सही होने वाला है, बचे हुए जो करेक्ट ऑप्शन है उनमें से, ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। ओके, अब देखो ये भी वापस इजी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए, मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये डाइस कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा, लाइक दिस, देन यू विल हैव अ बॉक्स, और ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो डाइस ऐसा होना चाहिए, ये देखो ये डाइस कैसा है, उल्टा बना दिया, ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा, ओके। अब 2 था तो यहाँ पे भी 2, आई गेस दिस इज द सेम क्वेश्चन जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया, सेम क्वेश्चन है उससे, तो हमें तो पता चला ही है कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर था, सो 3 इज द करेक्ट आंसर। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब इसका रिफ्लेक्शन करना है, तो मिरर इमेज रिफ्लेक्शन, तो ये एस ऐसा बनेगा, अब यहाँ पे तो पहले एस है ही नहीं, तो ये तो आएगा ही नहीं, दिस वन विल ऑल्सो नॉट बी दी आंसर। अब दोनों में एस का रिफ्लेक्शन सही किया हुआ है, तो नेक्स्ट अल्फाबेट देखते हैं, देखो दोनों ऑप्शन में एन भी सही सेम है, तो उसको देखने का कोई यूज नहीं है। ओ भी दोनों में सेम है, सी ओ एंड ओ ओवर हियर, आई भी दोनों में सेम है, टी भी सेम है, ए भी सेम है। अब एम विल मेक अ डिफरेंस, देखो एम यहाँ पे और एम यहाँ पे, अब एम का अगर मैं रिफ्लेक्शन लूँ तो एम तो एम ही दिखता है रिफ्लेक्शन में भी, तो यहाँ पे एम को एम ही बनाया हुआ है, बट यहाँ एम को क्या किया है, आप एम को क्या किया है, अगर आप यहाँ मिरर रखो तो एम डब्ल्यू बनेगा, ठीक है, तो इन्होंने एम को डब्ल्यू बना दिया, तो दिस विल नॉट बी आवर आंसर, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर 3, ये अब हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन देन, ठीक है, ये अच्छा इमेज दिया हुआ है, इसका रिफ्लेक्शन देखना है, ठीक है। सो आई गेस देखते ही मैं बता सकता हूँ। ओके, देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन 2, ये वाला और ये वाला हमें कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, ये तो पोजीशन ही लाइक चेंज कर दी है उसकी, राइट, ये ऐसा लग रहा है कुछ खोद रहा है अंदर से, और ये ऐसा लग रहा है कि नाव चला रहा है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, दिस विल ऑल्सो नॉट बी दी आंसर, क्योंकि इसको तो आगे खिसका दिया है इमेज, ये अगर आप ओरिजिनल इमेज देखो तो इसको तो आगे खिसका लिया है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये या ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो देखते हैं कौन सा वाला करेक्ट होगा, रेक्टेंगल भी सही है, सब सही है, व्हाट इज नॉट करेक्ट इन द 2, लेट अस सी दैट। आई गेस, हाँ ये देखिए यहाँ पे इफ यू सी, ये जो पार्ट है ये क्या है, वेव की एग्जैक्ट बीच में दिया हुआ है, बट एक्चुअली इमेज देखो तो यहाँ पे है, एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, सो दैट मीन्स ये वाला जो फिगर है उसमें यहाँ पे करेक्टली बताया हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे तो गलत रिप्रेजेंट किया हुआ था, ठीक है, सो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो 4th इज आर करेक्ट आंसर। तो देखो आप इतना आसानी से देख के भी इवन बता सकते हो कि कौन सा सही ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट, ओके दिस वन, अब यहाँ पे आपने रख दिया मिरर, अब पहले तो देखो 3, तो 3 रिफ्लेक्शन में ऐसा दिखेगा, ठीक है, सब में 3 दिया हुआ है, ओनली ये जो रिफ्लेक्शन है दैट इज रॉन्ग, तो ये हट गया आपका,
ये 3 बाकी में 3 का रिफ्लेक्शन सही हुआ है। अब देखो G ये दोनों में रिफ्लेक्शन देखो और यहाँ पे देखो, दिस इज डिफरेंट। G का रिफ्लेक्शन कैसा होना चाहिए, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। सो और ऐसा वाला रिफ्लेक्शन किस में है, हाँ सी ये भी गलत रिफ्लेक्शन दिखा रहा है एंड दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो बच्चा कौन सा, एक ही ऑप्शन बचा आपका, दिस। सो ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, राइट। अगर आप चाहो तो फ्लिप करके देख सकते हो, यू विल कम टू नो दैट ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड देन। ओके, यहाँ पे भी हमें मिरर इमेज निकालनी है, राइट। सो देखो अब इसका जो रिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी लाइक दिस, राइट। ये एरो जो यहाँ पे है वो यहाँ पे जाएगा एंड दिस विल ऑल्सो बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब एरो ऐसा कहाँ पे नहीं दिखा रहा है इसमें, तो ये हो गया एलिमिनेट। बच्चे कौन से 3 ऑप्शन आपके पास। अब आपको ये भी पता है कि ये फिगर जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये ऐसा ऐसा बनेगा, राइट, लाइक दिस, ओके, और ये ऐसा होगा। हमने एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ही कर दिया। यहाँ पे देखो ये फिगर एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ये जो डायगोनल जैसे लाइन सेगमेंट्स है वो कहाँ पे है, पीछे वाले पोर्शन में, यहाँ तो आगे वाले पोर्शन में बना दिया। अब ये तो इसी चीज़ को अगर आप मिड पोर्शन देखो इसका तो वैसा का वैसा ही प्लेस कर दिया यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। और ये किससे रिजेंबल कर रहा है, इससे। सो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। सो 4th वाला जो आंसर है दैट इज करेक्ट। देखो अगर आप डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते हो विच वन विल बी द आंसर, तो आप ऐसे ऐसे यानी जाओ, ठीक है, एक एक पार्ट देख के जाओ तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा विच शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। सो वी विल बी डिस्कसिंग ओनली दिस मेनी सम्स इन दिस टॉपिक। तो जैसा कि आपने देखा इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स, ठीक है, एंड इमेज वाले, इमेज दिया होगा उसका मिरर इमेज आपको फाइंड आउट करना। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा और आपको हर एक चीज़ समझ में आई जो हमने डिस्कस की इस वीडियो के अंदर। लास्टली मैं आपको खाली एक चीज़ रिमाइंड करवा दूंगा कि व्हेनेवर वाटर इमेज इज टोल्ड उसको फ्लिप करना है वर्टिकली, ठीक है, यानी वर्टिकली इन्वर्ट होता है। और जब भी मिरर इमेज ढूंढने बोला है तो उसको लैटरली इन्वर्ट करना है, यानी इसको ऐसा समझ लीजिए ये ऐसा है तो उसको ऐसा ऐसा फ्लिप करना है। और वर्टिकल के लिए कैसा करना है, समझ लीजिए ये ऐसा है तो उसको ऐसा फ्लिप कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। अगर ये आपको कंसेप्ट समझ में आया तो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इज इन्फिनिटी स्कॉलर्स हब। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।